हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर, यानी कि फॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, सो दैट इन द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉर्मल लेटर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, बोथ on the perspective of CBSE and ICSE exams, what is the correct format along with the few examples। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम फटाफट से बिगिन करते हैं। सो first let me tell you what is the meaning of a letter. A letter is any body in which the content related to some topic is written, okay, and that should be written in a proper format. There are two types of letter. First one is the formal letter and the second one is the informal letter, जिसे हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं in हिंदी। So अनौपचारिक पत्र जो है यानी कि जो हम अपने पर्सनल रिलेटिव्स को लिखते हैं या फिर फ्रेंड्स को लिखते हैं, फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल इन दैट यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड दैट सेंडर्स एड्रेस you have to write, then correct date you have to give, then no subject is required, only the salutation, body and the closing, complimentary closing is required. But when it comes to formal letter, जहाँ formal letter की बात आती है वहाँ हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, because it needs adherence to the rules that we should follow while writing the formal letter. So formal letters are those letters which we write to the official people and that too it is written in an official tone. एक official tone में, एक official language में इस चीज़ को लिखा जाता है and it is written to the official person. Okay, that can be the letter of complaint, it can be the letter of inquiry, it can be the letter of sales, services related to any kind of product which we are going to purchase or buy. It can also be the letter of complaint and the application that we write to our principal. Okay, so आइए अब हम डिस्कस करते हैं what is the actual meaning of formal letter. As it is written here, a formal letter is one which is written in a formal and uses formal language. जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, ये एक formal letter होता है जो formal लोगों को लिखा जाता है and that too the language is very simple and it should be formal. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं फॉर्मल लेटर में। फ्लावरी लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं बट in informal letter. Okay, so such letters are written for official purposes to authorities, dignitaries, colleagues and seniors and not to personal contact. ये letters हम अपने personal contact को नहीं लिखते हैं, अपने friends या family members के लिए ये खत हम नहीं लिखते हैं। A number of convention must be adhered to while drafting formal letter. तो इन्हें ड्राफ्ट करने से पहले हमें बहुत सारे रूल्स का पालन करना पड़ता है, आप ये समझ सकते हैं, उन्हें एडहर करना पड़ता है। तो आइए अब हम देखते हैं हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर एंड व्हाट आर द कंटेंट्स और व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट वी शुड पुट इन आवर formal letter. So first one is the sender's detail or address. As you can see here, the sender's detail first we have to write. So sender's detail जो है वो किस तरीके से आएगा? The sender detail should be written at the top of the page. पेज के सबसे टॉप में आपको खुद का एड्रेस लिखना है, खुद का नाम लिखना है एंड अपना सारा भी मीन्स जितना भी डिटेल्स है वो देना है एंड इट रिलेटेड टू सच दैट नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल शुड बी देयर. Okay, and the second one is the date followed by the sender's detail. The date should be mentioned. The senders should mention the date on which the letter is written. जिस दिन पर आप वो पत्र लिख रहे हैं उस दिन का डेट आपको मेंशन करना है. आफ्टर दैट रिसीवर्स डिटेल या फिर हम जिसे एड्रेस कहते हैं, यू शुड मेंशन, यानी जिसे आपका खत मिलने वाला है आप उसका एड्रेस लिखोगे. हियर यू शुड मेंशन द एड्रेस ऑफ द रिसीवर यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर फॉर स्कूल ऑफिशियल्स. यदि आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, टीचर को लिख रहे हैं, HOD को लिख रहे हैं, यू शुड मेंशन द नेम एंड द पोजीशन ऑफ द रिसीवर. फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, देन यू हैव टू राइट द प्रिंसिपल. ओके, अगर आप HOD को लिख रहे हैं देन यू हैव to write the HOD. Okay, so the receiver followed by the address of the school. Okay, address जो है फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल जो है वो गुड़गांव में पड़ता है तो आपको लिखना है गुड़गांव, और इफ इट इज देयर इन एनी अदर सिटी लाइक बैंगलोर सो यू हैव टू राइट बैंगलोर. ओके, देन सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. फॉलोड बाय द रिसीवर्स डिटेल यू मस्ट इंक्लूड the subject line. Subject line should be very short and precise and it should be
in a formal language. Basically this subject line talks about the purpose of the letter. आपने किस पर्पस से उस लेटर को लिखा है ये आप मेंशन करेंगे सब्जेक्ट लाइन में. आगे बढ़ते हैं. सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन्स व्हाट? यू शुड ग्रीट द पर्सन. जैसे आपके टीचर्स आपके क्लासरूम में आते हैं, एट दैट टाइम यू आर ग्रीटिंग, एंड वेन एवर यू सी योर कलीग्स ऑल्सो एट दैट टाइम यू आर ग्रीटिंग, और योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जस्ट लाइक दैट हमें उनको भी ग्रीट करना है, लाइक डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, हम्बली, रिस्पेक्टफुली, एनीथिंग. सैल्यूटेशन शुड बी देयर इन अ फॉर्मल लैंग्वेज. द ग्रीटिंग शुड नॉट बी टू पर्सनल. वो बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए. Body of the letter. If we talk about the body of the letter, then basically the body of the letter is divided into 3 parts. पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे खुद के बारे में, बिकॉज आप जिन्हें खत लिख रहे हैं उन्हें आपके बारे में पता भी होना चाहिए, एंड आपका पर्पस क्या है उस खत को लिखने का. सेकेंड पैराग्राफ में यू विल एक्सप्लेन द रीजन इन डिटेल. आपने किस रीजन से वो खत लिखा है उसे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा. पैराग्राफ नंबर 3 to conclude the letter and what you are expecting for. Okay, what you are expecting from that person वो भी आपको conclude करते वक्त पैराग्राफ नंबर 3 में mention करना होता है. After that simply you have to give the complimentary closing. Now conclude the letter with complimentary closings like yours sincerely, yours faithfully, yours obediently. Okay, आप उसमें like yours pen pal, or you cannot write that yours loving friend. वो हम इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं. बट जहाँ बात आती है फॉर्मल लेटर की, यू शुड यूज आइदर सिंसियरली, फेथफुली, और यू कैन यूज लाइक ओबीडियंटली, बट नॉट personal messages. Then at last you have to give your signature. Signature means you have to write your full name. Okay, below the complimentary message, write your name followed by your signature and designation, in which designation you are. And if you are not having any designation, you are a student, then आपको अपना खुद का नाम लिखना है. You have to write your roll number, class and section. All right. Now, अब हम बात करते हैं in short that what are the ingredients or what are the structure of a formal letter. So let us revise. Sender's address should be there. Okay. Sender's address should be there. After that, date, then name and designation of the addressee, address of the addressee, salutation, subject, body, which should consist of introduction, content, conclusion, complimentary closing line, yours sincerely or yours faithfully, then signature, name of the sender you have to write, and the designation of the sender. So that's all. टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर की बात कर लेते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर. इट्स नॉट लाइक दैट जब फॉर्मल लेटर की बात आती है तो वो सिर्फ एप्लीकेशन ही हो जो एक स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल को लिखे या अपने क्लास टीचर को लिखे. इट इज़ नॉट लाइक दैट. फॉर्मल लेटर्स आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सबसे पहला फॉर्मल लेटर जो है वो है लेटर ऑफ इंक्वायरी. Yes, for collecting information or details regarding a course, product, services from a certain institution, business and organization. यदि आप किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसमैन से, तो आप इस लेटर ऑफ इंक्वायरी का सहारा लेकर के आप वो सारे इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं. लेकिन इसे भी लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया है. देन नंबर 2, ऑर्डर लेटर. मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हैं एंड आपको कुछ ऑर्डर्स देने हैं. सो व्हाट यू विल डू, रिटन बाय अ बायर. अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप ये लिखेंगे एक सप्लायर को, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स. मान लीजिए यू आर हैविंग अ बुक स्टोर एंड यू वांट like 4 to 5 books. Okay, 4 to 5 bundles of books we can say. तो आपको कौन से बुक्स कितने क्वांटिटी में चाहिए, everything you have to mention in the order letter. Then the third one is letter of complaint. As a formal letter of complaint regarding a certain product, service, a complaint letter is addressed to the seller and generally includes the details regarding the lack of quality or quantity. आपको मान लीजिए एक प्रोडक्ट मिला है, उस प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट आया है, कोई सर्विस आपको मिला है, इन दैट सर्विस यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट्स, देन उसके रिगार्डिंग आप कंप्लेंट कर सकते हैं जहाँ से आपको प्रोडक्ट रिसीव हुआ है. आगे बढ़ते हैं. रिप्लाई टू द लेटर ऑफ कंप्लेंट. इफ यू आर द ओनर योरसेल्फ एंड यू रिसीव्ड द लेटर ऑफ कंप्लेंट, देन इट कम्स अंडर गुड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कि आप किस तरीके से उन्हें आंसर करते हैं.
how to reply a letter of complaint written by the seller in reply to the buyer's letter of complaint, and this letter commonly includes a clarification or an apology for the buyer's complaint. यानी कि बायर ने जिस तरीके का भी कंप्लेन किया है, मान लीजिए आपने, आपकी एक कंपनी है एंड यू हैड सेल 1000 पीसेस ऑफ मिक्सर ग्राइंडर, उसमें से किसी एक पीस में डिफेक्ट निकल गया, तो आपके जो मीन्स कस्टमर है उन्होंने आपको खत लिखा, तो उसका आप रिप्लाई किस तरीके से करेंगे, तो वो जो है वो आपके इस लेटर के कैटेगरी में आता है, एंड दैट शुड ऑल्सो बी रिटन विथ अ फॉर्मल टोन एंड इन अ फॉर्मल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वन इज प्रमोशन लेटर फॉर प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द कस्टमर. यदि आप किसी तरीके का प्रमोशन लेटर दे रहे हैं अपने किसी मीन्स एम्प्लॉयज़ को, तो उस वक्त भी आपको फॉर्मल लेटर का सहारा लेना होता है. देन नेक्स्ट फॉर्मल लेटर इज सेल्स लेटर, मेनली क्यूरेटेड फॉर सेल्स प्रमोशन. अ सेल्स लेटर इज सेंड बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर फॉर फैमिलराइजिंग देम विद द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज दे आर यूजिंग. मान लीजिए आप किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस जो कि किसी कंपनी से बिलोंग करता है उसे यूज कर रहे हैं, देन सेल्स लेटर मोस्ट प्रोबेबली यू ऑल आर रिसीविंग. इन दैट इज रिटन इन a formal tone, and that is also considered as a formal letter in which you will get the information regarding the use of that product and service. The last one is the recovery letter written by a business in order to recover the money from the customer who haven't paid for their products or services. तो ये recovery letters जो हैं हम उन customers को लिखते हैं जिनका due amount अभी तक पेंडिंग होता है और हमें मिला नहीं होता है, तो ये जो है हम फॉर्मल लेटर के ज़रिए उनको बता सकते हैं. सो आई होप कि ये सारी जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग लाइक कनेक्टेड विथ मी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल, एंड ये वीडियो उन सारे मीन्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो अभी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. तो मैंने आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट यहाँ रेडी किया है, एंड इस फॉर्मेट में इस एग्जाम्पल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि हाउ यू शुड राइट द लेटर. सी द प्रिंसिपल, सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर मीन्स जस्ट राइटिंग टू योर प्रिंसिपल फॉर अ मेडिकल लीव. आपको मेडिकल लीव की ज़रूरत है एंड आप चाहते हैं कि आपको कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाए, तो आप कैसे लिखेंगे? फर्स्ट यू हैव टू राइट द address of the principal. The principal, Mary Public School, Gurgaon, Haryana. Then you have to give the date, 26 September. Subject you have to give for which purpose you are writing the letter, application for a medical leave. Then salutation, dear sir, ma'am, I would like to bring to your kind attention that my name is Sayani Datta, a student of Class 12 of your school. I have been diagnosed with chickenpox and have been advised complete rest at home by my doctor for 10 days. I would request you to kindly grant me the leave for the mentioned number of days given above, and the medical certificate issued by the doctor is attached herewith. Thanking you. It is a complimentary closing. Then yours obediently, Sayani Datta, Standard 12. So इसी तरीके से आपको लेटर लिखना है if you want leave फ्रॉम योर प्रिंसिपल. और एक लेटर का जो सैम्पल है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने इंक्लूड किया है, अटैच किया है. सी निशांत, श्रीनगर, कश्मीर, 8 अप्रैल 2020. ये जो है ये एक मीन्स एडवर्टाइजमेंट स्पेस चाहते हैं इन द मैगजीन, तो ये एडिटर को लिखा जा रहा है ये जो लेटर है, तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? फर्स्ट यू हैव टू मेंशन सेंडर्स एड्रेस. यू आर द सेंडर, तो आपको अपना एड्रेस देना होगा. आफ्टर दैट यू हैव टू address it. See, Nishant, Srinagar, Kashmir, 8th April, date is given. Mr. Umar Fayaz, जिन्हें ये लेटर लिखा जा रहा है, he is the CEO of Alarm Post Magazine. तो उन्हें ये खत लिखा जा रहा है HMT श्रीनगर कश्मीर. What is the subject? They want advertisement space. Okay, advertisement space in your esteemed magazine. Mr. Umar, with paramount reverence, I want to inform you that we are avid readers of your esteemed news magazine, which is truly standing as a stalwart example of journalism excellence. We would like to request you to provide us with a front page advertisement space in your magazine. Please provide us with the prices regarding the same. The earliest action will be highly appreciated. Yours truly, resident of निशान नगर. तो इस तरीके से आप लेटर जो है किसी भी एडिटर को भी लिख सकते हैं. दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल लेटर.
तो आज के इस वीडियो का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय एंड गुड नाइट।